Can you see the screen? Yes, sir. So after having seen many important concept belongs to the vector atom model, last time we have seen that how the different quantum numbers or different orbital angular momentum and spin angular momentum, it get added and form the total angular momentum, that is J is equals to L plus S, how it is geometrically possible, that we have seen with the help of LS coupling and JJ coupling. From the examination point of view, LL coupling and JJ coupling is most important. If the examination is of written type or as usual, then these two questions may be exactly arises, or if the examination pattern is as per the objective type question, then exactly one or two at least two MCQs will be depend on this LS coupling and JJ coupling. Therefore, you are expected to read or try to understand these two articles, that is LS coupling and JJ coupling well, because these articles are not only important from the examination point of view, but for your further studies, these articles are important. Now, if you remember our portion which we are dealing from the last few days, you know that we are dealing about the atomic structure. Am I correct? Yes, no बोलते रहिएगा. That means yes, electron is present in the atom around the nucleus in a circular orbit. This electron is revolving around the circular orbit, around the nucleus in circular orbit, possess lot of concepts. It possesses orbital angular momentum. It possesses spin angular momentum. Then it also has magnetic spin angular momentum, isn't it? It possesses magnetic orbital angular momentum. Am I correct? It possesses total quantum number, or it possesses the quantum number L. That means when the electron is present in the nucleus, in the orbit around the nucleus, and when we want to give its status, when we want to specify it, we have to give at least 4 quantum numbers related to that electron. Am I correct? जब भी कोई इलेक्ट्रॉन, हमको इतना तो मालूम है कि न्यूक्लियस के अतराफ इलेक्ट्रॉन मुख्तलिफ ऑर्बिट्स में है. Am I correct? yes, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट. एक इलेक्ट्रॉन हो सकता पहले ऑर्बिट में, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते, 3 हो सकते, 4 हो सकते. इलेक्ट्रॉन की तादाद उसके एटॉमिक नंबर के हिसाब से डिपेंड करती. आप ये भी समझ जाते, पहले में 2 है कि 4 है कि 6 है, दूसरे में 3 है, क्या है इनकी तादाद, यानी पहले तो कितने ऑर्बिट रहेंगे, इसका इन्हिसार किसके ऊपर है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर आइटम. एम आई करेक्ट? क्लोरीन है, yes, sir. आयोडीन है, सोडियम है, लिथियम है, यूरेनियम है, पोलोनियम है. इसके हिसाब से ऑर्बिट यानी कि सेल और सब सेल की तादाद डिसाइड होती. एम ए करेक्ट? उसी तरह हम जानते हैं कि सेल और सब सेल जो है तो एस पी डी के एल एम एन के नाम से पुकारे जाते. आर यू एग्री? yes, Secondly, we are knowing that when the electron is present in these orbit and we want to specify these electrons, यानी कि हमको जब इन इलेक्ट्रॉनों के, इन इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बोलना रहता है, स्पेसिफाई करना रहता है, या आम अल्फाज में मैं डे टू डे लाइफ में बोलूँ कि उनका पता बताना रहता है फिजिक्स के लैंग्वेज में, तो हमको इन इलेक्ट्रॉन के क्वांटम स्टेट को जाहिर करना पड़ता. एम आई करेक्ट? कि भाई yes, इलेक्ट्रॉन का यन इतना है, यल इतना है, यमयल इतना है, यमयस इतना है. एम आई करेक्ट? इससे पहले भी बताया ये बात. ये चारों में से जब आप ये 4 बताते, या 1 बताते, 2 बताते, 3 बताते, मुराद आप जो है उस इलेक्ट्रॉन की कौन सी हालत को जाहिर करते, कौन सी स्टेट को बताते, उसकी क्वांटम स्टेट को बताते. एम आई करेक्ट? yes, yes. Now when we are giving the status of the quantum state of the electron,
at that time we should give n is equals to 1. Like for example, L is equals to 0, isn't it? ML is equals to 1 or 2, whatever it may be. And MS is equals to plus half or minus half. N is what? Principal quantum number. Am I correct? This is orbital quantum number L. बराबर है? ML magnetic orbital quantum number. Am I correct? जो कि प्रोजेक्शन डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल मोमेंटम बताता था, बराबर है? और तीसरा मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर. फिर एक बार बोलूं, when we want to give the quantum status of the electron in the orbit, we have to the quantum number, principal quantum number n of that electron, L यानी कि orbital quantum number of that electron. We have to give the magnetic orbital quantum number of that electron and magnetic spin quantum number of that electron. Including these four means we are specifying that particular electron. Am I correct? Can you see the screen? Yes, sir. Now, according to the Pauli exclusion principle, पॉली नाम है साइंटिस्ट का, सुन लीजिए, पॉली साइंटिस्ट का नाम है. एक्सक्लूजन क्यों लगा हुआ है, थोड़ा सा इसके आगे जाके समझ में आएगा आपके. पॉली मगर साइंटिस्ट का नाम है, उसका ये प्रिंसिपल है. आई थिंक इट इज अ PAL प्रिंसिपल, यहाँ मैंने एल ही लिख दिया, बट इट इज प्रिंसिपल. जो अपना प्रिंसिपल था वही स्पेलिंग है उसकी. तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट दैट no two electron in atom exist in the same quantum state. ये प्रिंसिपल का स्टेटमेंट, इस प्रिंसिपल का मखौला क्या है, क्या बोलता हो कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन सेम क्वांटम स्टेट में नहीं रहते. समझ में आ रही क्या बात? मिसाल के तौर पर एक ऑर्बिट है, एक एटम है, एटम के अंदर ऑर्बिट्स है, मानते आप ऑर्बिट रहते. पहला ऑर्बिट है, पहले ऑर्बिट में मिसाल के तौर पर 2 इलेक्ट्रॉन. आर यू एग्री? अब yes, sir. ये 2 इलेक्ट्रॉन में हर इलेक्ट्रॉन का क्या क्या देना पड़ेगा आपको क्वांटम स्टेट में? N, L, ML एंड MS. समझो N इज इक्वल टू 1 है पहले इलेक्ट्रॉन का, मान लिया आपने, पहले इलेक्ट्रॉन का N इज इक्वल टू 1. चलिए L इज इक्वल टू 0, ठीक है. ML इज इक्वल टू 1 सपोज, एंड MS इज इक्वल टू 1/2. हो गया? ये हो गई पहले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन नंबर 1 की क्वांटम स्टेट. आर यू एग्री? यस सर. उसी ऑर्बिट में दूसरा इलेक्ट्रॉन है, उसकी क्वांटम स्टेट देने की क्या क्या रहेगा? N इज इक्वल टू 1 रहेगा. चलो ठीक है. N इज इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है, मोटा मोटा समझा रहा हूं. ML इज इक्वल टू 1 रहेगा पहले की उत्तर, लेकिन MS इज इक्वल टू 1/2 रहेगा क्या? क्योंकि जब 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो एक ऐसा फिरेगा तो एक ऐसा फिरेगा. प्लस माइनस. दूसरे की MS क्या बनेगी जी? पहले की माइनस रहे तो दूसरे की प्लस बनेगी. इसका मतलब दोनों सेम क्वांट, अब चारों को मिला के एक क्वांटम स्टेट है. N, L, ML और MS, ये चारों की कीमत को मिला के हम कौन सी स्टेट बोलते हैं? क्वांटम स्टेट बोलते हैं. पहले के और यहाँ पर पहले के क्वांटम स्टेट में और दूसरे के क्वांटम स्टेट में कहाँ फर्क आ गया? चलिए N 1 हो गया, L 1 हो गया, ML भी 1 हुआ था, हालांकि हमेशा नहीं होता, लेकिन MS में फर्क आ गया. लिहाजा दोनों इलेक्ट्रॉन जो कि एक ही ऑर्बिट में थे, एक ही एटम के थे, सेम क्वांटम स्टेट के साथ है क्या? समझ में आ रही बात? अगर समझो दूसरे की भी हाफ रहती,
या दूसरे की भी एमएस हाफ रहती तो उस वक्त क्या होता था, वो उस आइटम में रहता था क्या, वो निकल जाता था, एक्सक्लूड हो जाता था। तो क्या हो जाता था, एक्सक्लूड हो जाता था, मतलब उस एटम के अज्जा से, एटम के कंस्टिट्यूएंट से उसका इखराज हो जाता था, वो एक्सक्लूजन हो जाता था। इस वास्ते प्रिंसिपल का नाम है एक्सक्लूजन। प्रिंसिपल का क्या नाम है, एक्सक्लूजन। कौन जो है तो इसको जो है तो स्टेटमेंट दिया इसकी पॉली ने, इस वास्ते प्रिंसिपल का नाम क्या है, पॉली एक्सक्लूजन। बात चल रही है एटम की, जब इलेक्ट्रॉन, जब एटम आइसोलेटेड हालत में है तो दो कोई भी इलेक्ट्रॉन सेम 4 क्वांटम नंबर्स नहीं रखते। नो टू इलेक्ट्रॉन, अल्टरनेट स्टेटमेंट बता रहा हूं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की, कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन आइसोलेटेड एटम, जब रिएक्शन होंगी उसके साथ मिलेगा उस बात अलग है, लेकिन किसी भी आइसोलेटेड एटम में कोई भी दो इलेक्ट्रॉन अपने चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं रखते। यल सेम हो सकता है, यल सेम हो सकता है, यमएल सेम हो सकता है, लेकिन यमएस नहीं रहेगा। कभी यमएस सेम हुआ, यमएल सेम हुआ तो यन और यल अलग रहेंगे। मतलब चारों भी जो पैरामीटर्स है, यन, यल, यम, यल, यस, वो कभी भी दो इलेक्ट्रॉन के सेम नहीं हो सकता। तो लिहाजा ऊपर की जो स्टेटमेंट थी कि नो इलेक्ट्रॉन्स इन एटम एग्जिस्ट इन ए सेम क्वांटम स्टेट, सही है क्या नहीं? क्या इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि नहीं, कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन आइसोलेटेड एटम में हैव सेम 4 क्वांटम नंबर्स। समझ में आई कि तुम्हारे बात? यस सर। और अगर एटम के दो इलेक्ट्रॉन सेम क्वांटम स्टेट में आ गए, यानी कि उनके चारों क्वांटम नंबर सेम हो गए, तो वो एटम का दूसरा इलेक्ट्रॉन एटम का हिस्सा नहीं रहेगा, उन्हें एक्सक्लूड हो जाएगा। और आगे चलने के बाद तुम्हारे समझ में आएगा कि क्यों एक्सक्लूड हो जाएगा। लिहाजा उन्हें एक्सक्लूड होता, उसके हिस्से से निकल जाता, खारिज हो जाता। इस वास्ते प्रिंसिपल का नाम क्या कहलाया, पॉली, नाम साइंटिस्ट का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। समझ में आई कि तुम्हारे बात? पूरे आर्टिकल का लेबल है जो मैंने बयान कर दिया। जबान याद रहना आपको कोई भी बोले व्हाट इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तो आपने सिंपली उर्दू में याद करना कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन का एटम के अंदर 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं रहते, ऐसा उर्दू में याद करना, मतलब सहन में बिठा लेना। फिर आप उसकी इंग्लिश बना के बोल सकते हैं कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन आइसोलेटेड एटम मे हैव सेम 4 क्वांटम नंबर्स। चलो आगे, स्टेटमेंट समझ में आ गई? एक्सप्लेनेशन देखते हैं थोड़ा सा एग्जांपल के साथ। दिस प्रिंसिपल इंप्लाइज दैट ईच इलेक्ट्रॉन इन एटम मस्ट हैव, अब ये ऊपर के स्टेटमेंट के हिसाब से अपन ने, अब थोड़ा सा तो इलेबोरेट कर रहा हूं। ऊपर का स्टेटमेंट क्या बोल रहा तुम्हारे को, क्या इंप्लाइज कर रहा कि हर इलेक्ट्रॉन जो कि एटम में रहेगा उन्हें चारों क्वांटम नंबर अलग अलग रखेगा, चारों में से कम एक तो भी अलग रखेगा। एक मतलब हुआ ना इसका, नहीं समझ में आ रही बात? एटम के अंदर हर इलेक्ट्रॉन अपनी अलग क्वांटम स्टेट रखेगा कि नहीं? रखेंगे। यस, यानी कि ये प्रिंसिपल हमको ये बताता, दिस प्रिंसिपल इंप्लॉइज दैट ईच इलेक्ट्रॉन इन द एटम मस्ट हैव डिफरेंट सेट ऑफ क्वांटम नंबर, दैट इज n, l, ml and ms. Two electrons have all their quantum numbers identical. अगर दो इलेक्ट्रॉन अपने तमाम क्वांटम नंबर्स आइडेंटिकल रखते हो, मतलब n1 is equals to n2, l is equals l1 is equal to l1, l2 ml is equal m2, m1 is equals to m2 और m1 is equal to ms2, अगर ऐसा है, दो इलेक्ट्रॉन है और उनके क्वांटम नंबर चारों के चारों सेम है, तो क्या होगा फिर वैसे सूरत में कि दोनों में से कोई एक, then one of these two electrons would be excluded from entering into the constitution of atom. constitution में तो कानून नहीं बल्कि उसके अज्जा में से, उसके जुज में से, उसकी बनावट में से एक क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगी। एक्सक्लूजन प्रिंसिपल समझ में आ गया क्या? अगर वाइवा में या ओरल में या कभी आपको एमएससी के दौरान कोई पूछे कि एक्सक्लूजन काय को आया जिसके अंदर, so you should be in a position to tell him that according to this principle, if the two electrons are existing in the atom and they are possessing suppose all the 4 quantum numbers same, then
one out of these two, one will be get excluded from the constitution, one will be get excluded from the atom. Therefore, the word exclusion has been introduced in the Pauli exclusion principle title. Am I correct? अब इसकी बुनियाद पर इसके एप्लीकेशन के हिसाब से देखते हैं अलग अलग सेल में क्या हो रहा. This principles enables us to calculate the number of electron that can occupy the given cell. जब ये प्रिंसिपल आ गया, इस प्रिंसिपल के तहत समझ में आ गया कि दो इलेक्ट्रॉन सेम क्वांटम नंबर के साथ नहीं रहना, तो उसकी बुनियाद पे अब अलग अलग सेल में, अलग अलग सब सेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद मालूम की गई. जो आप बोलते हैं ना 1s2 2s2, क्या बुनियाद पे बोलते सुन लीजिए. फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द के शेल. अभी के कब बोलते हैं वो आपको मैंने बताया था, एस पी एल के. हुआ क्या अपना आर्टिकल नंबर 2 इसी चैप्टर का, उसमें हुआ ना अपना. तो फॉर द के शेल एल इज इक्वल टू 1 बराबर है, इक्वल टू 0. एम एल इज इक्वल टू 0, बट एस इज इक्वल टू क्या 1. एम एस कैन बी आइदर प्लस हाफ और माइनस. Hence, K shell have 2 electrons. अब अगर K shell के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन नंबर 1 with quantum number n is equals to 1, l is equals to 0, ml is equals to 0, and ms is equals to 1. While in the same K shell, electron number 2 with have quantum number n is equals to 1, l is equals to 0, ml is equals to 0, and ms is equals to -1. Are you agree? If there yes. अब अगर समझो के सेल में तीसरा इलेक्ट्रॉन तुम लाते थे, अब सुन लीजिए, 2 थे समझ में आ गया, और दोनों की क्वांटम, क्योंकि अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होबे करेंगे नहीं, है ना. दोनों की क्वांटम स्टेट अलग अलग है कि नहीं, क्यों है अलग अलग, कहां पे फर्क आ गया? एमएस में फर्क आ गया. लिहाजा ये 2 इलेक्ट्रॉन जो कि के शेल का हिस्सा थे, ये क्या बने? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से चले. सपोज दैट इन द सेम के शेल थर्ड इलेक्ट्रॉन इज देयर, जब उन्हें के शेल में रहेगा उन्हें थर्ड इलेक्ट्रॉन, तो उसकी क्वांटम स्टेट क्या रहना जी? n इज इक्वल टू 1 रहना, बराबर है, क्योंकि के शेल में है n इज इक्वल टू 1. ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के सेल का 0, ml भी 0, ms क्या होना? एक तो प्लस हाफ होना, नहीं तो माइनस. तीसरी वैल्यू तो है नहीं ना इसकी. अब अगर तीसरे वाला आया तो तीसरे वाले की कीमत समझो प्लस, ms उसका प्लस हाफ रहा, तो फिर उन्हें किसके बराबर हो जाएगा, किसके साथ उसके वैल्यूज पूरे मैच हो जाएंगे? पहले नंबर वाले इलेक्ट्रॉन के साथ, बराबर है. उसकी ms अगर माइनस हाफ रही तो उसके क्वांटम नंबर्स किसके साथ मैच हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन नंबर 2 के साथ. ये जो है तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करेगा क्या? दिस इज अगेंस्ट द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, against the Pauli exclusion principle. Therefore, फिर अगर उसको के को रहना है, दो से हो जाएगा, तीसरा बैठ नहीं, इसका मतलब हुआ. Therefore, K shell is completed or closed with only 2 electrons. क्यों? कौन बोला 2 रहना बोल के? तीसरा लाए तो क्या होता था? एक्सक्लूड हो जाता, यानी कि अगेंस्ट द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो रहा था वो, क्योंकि अंदर 3 इलेक्ट्रॉन जो है सेम क्वांटम स्टेट के 2 आ जा रहे थे, एक क्वांटम स्टेट का अलग हो जा रहा था, लिहाजा तीसरा तो बढ़ता है. इट इज अगेंस्ट द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. देयरफॉर एप्लीकेशन ऑफ द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज दैट द के शेल इज क्लोज्ड विथ ओनली 2 इलेक्ट्रॉन. ये समझ में आ रही के बात? अगर से कि आपके पास से बैक साउंड बहुत सारे, पता नहीं आप लोग गाड़ी सफर में है क्या, कोई बैक साउंड बहुत आ रहे. अनदर एग्जांपल, L is for L shell. L shell क्या था? n कितना रहता? 2. L कितना रहता? 0 रहता. ये कहां से आया समझ में आ रहा है कि कहां से आया? मैंने तो कहां से आया है समझ
में आ रहा है? जिसके पास भी बैक साउंड आ रहा है जरा थोड़ा सा बंद कर दीजिएगा भाई। ये कहाँ से लाए अपने? पिछला आर्टिकल है कि याद आता? ये यहाँ से आ रहा क्या? ये है क्या याद? यस सर। हाँ, यहाँ से लाया अपन ने। यन की कीमत ये यल 0 L1 2 3 रहता ना, है क्या? ये यहां से लेकर आया अपन ने। है गॉट? तो अब समझो यस सर। यल इज इक्वल टू 2 है, सॉरी यल सेल है। यल सेल की वक्त n इज इक्वल टू 2 और यल की कीमत 0 यानी तो फिर 1। फिर फॉर द सब सेल n इज, अब जब उसका जब सब सेल आएगा तो n इज इक्वल टू 2, यल इज इक्वल टू 0, ml must be 0 and ml should be plus half यानी तो minus half. Hence there can be only 2 electron in this cell. For subcell n is equals to 2, l is equals to 1, ml can have 3 values, -1, 0, +1. For each these 3 values, जब l की कीमत -1, 0 या +1, तो corresponding ml और ss की भी कीमत क्या? 1/2 या -half. Hence there will be 6 possible set of values for quantum number characterized into the electron. उसी तरह maximum number of electrons in this cell is 6. The L cell with 2 subcell n is equals to 2, l is equals to 0 and n is equals to 2, l is equals to 1, क्योंकि दूसरे नंबर का जो K सेल है उसके अंदर n की कीमत 2 रहेंगी, n की कीमत तो 2 रहेंगी, लेकिन l की कीमतें 2 हो सकती, एक रहेंगी l is equals to 0 और दूसरी रहेंगी l is equals to 1। वो हिसाब से उसकी कीमत जो बनेगी तो वो कहाँ कंप्लीट हो जाएगा? 2 + 6 इज इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन। बराबर है क्या? कैसे बने इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स? क्यों आए? ये ऐसे उसके वो बनेंगे ना, -1 0 1, फिर उसका ms निकाल ml निकालेंगे, ms निकालेंगे, लिहाजा उस ऑर्बिट में टोटल उसकी जो है तो कैपेसिटी कितनी रह सकती? सब सेल में उसके 0, l की कीमत क्या रहेंगे? 0 1 2 3, सॉरी 0 1 2 और n की कीमत 2, उस वक्त सेट उसके बनेंगे 2 + 6 इज इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन। अब l k हो गया, l हो गया, उसके बाद कौन सा सेट आता? m के वास्ते n इज इक्वल टू 3, l की कीमत बढ़ती जाती ना, 0 1 2। हमने क्या बोले थे? l की कीमत क्या रहेंगी बोले थे? l -1 रहेंगी ना। जैसे यहाँ ये 3 है तो इन्हें कितना रहेगा? 0 1 2, इन्हें अगर 4 रहता था तो 0 1 2 0 1 2 3। तो इसका मतलब n इज इक्वल टू 3 कौन से सेल का हिस्सा है? m सेल का। m सेल का। तो l की कीमत ये, जब l की कीमत ये है तो वो हिसाब से सब सेल की कीमत बढ़ती जाएंगी। 2 × 2l + 1 that is 10 इलेक्ट्रॉन्स। बराबर है क्या? 2 ये फार्मूला है ना 2l। अब समझो यहाँ का l यहाँ 0 है तो चलो ठीक है, 2 0 2 ये 2, फिर 2 2 की 1 2 + 3 3 दूनी 6 हो गया। फिर यहाँ पे l इज इक्वल टू 2 2 दूनी 4 4 1 5 5 4 2 10, यानी कि कैसे कैसे बढ़ते जाएंगे इलेक्ट्रॉन? इस तरह से बढ़ते जाएंगे। तो लिहाजा m शेल की कैपेसिटी कितनी रहेंगी? 18। फिर n सेल क्या रहेगा वहां? n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू उसके कितने कपल बनेंगे? 0 1 2 3 1 2 3 and so on. So these are the total number of sub cells, isn't it? तो इसके n सेल की टोटल कैपेसिटी बनेगी 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो इन जनरल वी गेट द 2 फॉलोइंग कंक्लूजन्स। समझ में आया क्या आपके कि कैसे जो है तो वो फार्मूला याद रखना 2 2l + 1, वो हिसाब से आप और एक बार करके देखिएगा। वो हिसाब से अगर आप देखें तो जनरल इन द nth shell there are the nth sub cell corresponding to the value 0 1 2 3 n - 1 and maximum number of electron in sub cell with a given value of l is 2 × 2l + 1. Similarly for n cell can have maximum 32 electrons. n सेल के अंदर सब सेल की 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो अगर ये चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें ये फार्मूले के हिसाब से तो आपको जो है तो क्वांटम नंबर देखिए। अब यहाँ पे एक शीटीज दिया मैं आपको, सिंबल शेल का सिंबल क्या है? KLMNO। क्वांटम नंबर क्या है उनके? 1 1 2 3 4 5
तो ये फार्मूले के हिसाब से उनके सब सेल की तादाद बनेगी 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर। तो यहाँ n कितना है? 1 है। तो फिर 2n स्क्वायर कितना है इसका? 2, 1 की दूसरी बल तो 2 बराबर है। यस। n इज इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू 2 है, यल की औसत बराबर है क्या? तो कितना बनना? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी बनना? 8। कैसी बनी? कौन से फार्मूले से है? फिर एक बार देखो ये फार्मूला कैसे जन्म लिया। देखिए क्वांटम नंबर क्या है? ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की कीमत क्या रहती? 0 1 2 3 4। पॉसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते? 2 6 10 14 18। सब सेल का सिंबल क्या है? एस पी डी एफ बराबर है क्या? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी अकोमोडेटेड इन द शेल with principal quantum number n is equals to sum of electron in the constituent n cells। तो वो हिसाब से अगर देखें तो ये फार्मूला बनता समेशन l goes from 0 to l minus 1 to l plus 1। ये फार्मूला बनेगा। वो हिसाब से इसको अगर सॉल्व करें तो क्या बनेगा? वो n 2n स्क्वायर। तो क्वांटम नंबर n अगर रहा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होना चाहिए? 2n स्क्वायर। वो हिसाब से अगर आप देखें तो KLMN n की कीमत तो 1 2 3 4 और 5 100 और n स्क्वायर की कीमत पहले के वक्त कितने होना? 2, दूसरे के वक्त कितने होना? 8। ये बराबर है क्या? 18। यस। 3 3 3 9 मतलब 2 3 3 9 दूनी 18, 4 16 16 दूनी 32, 5 25 25 दूनी 50 बराबर है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द वेरियस सेल्स एंड सब सेल ये किसकी बुनियाद पर होता जी? कौन बताया ये ऐसा होना? 2 रहना था, 8 रहना था, 18 रहना था? क्या कौन सी बुनियाद पर डिसाइड करे? उठा के किसी आइटम में अगर इतने इलेक्ट्रॉन थे तो उनको तकसीम कर देना था। 2 2 4 4 6 6 8 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले में 2 होना, दूसरे में 8 होना मिनिमम, तो भी तीसरे में 18 रहना, चौथे में 32 रहना। ये कहां से आया? कौन दिया? किसका एप्लीकेशन है? क्यों? क्या पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्यों रैंडम उठा के डालते थे कैसा भी बेतरतीब, तो क्या होता था? तो एक ऑर्बिट में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाते थे जिनका के क्वांटम नंबर सेम आ जाता था। जबकि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोल रहा? एक एटम के एक ऑर्बिट पे दो इलेक्ट्रॉन सेम क्वांटम नंबर के नहीं रहना चाहिए, रहते ही नहीं। तो वो बुनियाद के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना है। यानी कि दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द वेरियस स्टेट्स या वेरियस स्टेट बोलते वेरियस शेल्स एंड सब सेल, इट वाज डन अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अगर टेबल के हिसाब से देखें तो n l m l m s ये 4 है ना, उसके हिसाब से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल विद स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द शेल इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। अब n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 0, ml 0, ms क्या होगा? प्लस 1 प्लस ऑफ माइनस। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सब सेल में कितने होना? 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होना? 2। तो वो सब सेल का नोटिफिकेशन क्या आएगा? 1s, क्योंकि सब सेल है ना 1s। अब इसके अंदर टोटल क्या हो रहा? स्क्रीन दिख रही है आपको? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रह रहे हो सेल में? ये 1 था ना, 1, तो n की जगह पे 1 तो 2 बराबर है क्या? दूसरा पॉसिबिलिटी है कि n इज इक्वल टू 2 रहे, तो n इज इक्वल टू 2 तो रहेगा, लेकिन पहले वाले के वास्ते क्या रहेगा? n इज इक्वल टू 0, दूसरे के वास्ते फिर n इज इक्वल टू 1, उसके करस्पॉन्डिंग 0 के वास्ते ml 0, ठीक है, ms फिर ये 2 वैल्यू। तो इसकी तादाद कितनी होगी? 2 तो रहेंगी, लेकिन वो बनेगा क्या? 2s2 बराबर है क्या? यस। और वहां पे 2n स्क्वायर कितना होगा? 8। अब उसी n इज इक्वल टू 2 में l की कीमत दूसरी भी है, क्या है? 1। वो हिसाब से अपन ml की कीमत देखे तो l के हिसाब से 2 इंटू अंडर रूट l इंटू l प्लस 1 के हिसाब से।
तो -1 0 +1 ये कीमत रहेंगी ml की। ms की तो ये दोनों में से एक रहेंगी, लिहाजा उस वक्त क्या बनेंगे इसके टोटल नंबर ऑफ सेल 6। और वो कौन से हिस्सा बनेगा फिर 2p6 इलेक्ट्रॉन, तो इसके हिसाब से बनेंगे यार। समझ में आएगा तुम्हारी ये चार्ट को देखो एक बार। 3 रहे तो n = 3 बना तो यल की कीमतें भी 0 1 2 0 1 2 0 के वास्ते तो ये 1 के वास्ते ये देखो 3s2 क्योंकि 2 हो गया था ना ऊपर 2 भी हो गया था तो 3s2 और 2p6 ये हो गया 3s2 2p6। बाद में ये p के बाद d अपन कॉन्फ़िगरेशन कैसे बोलते 1s2 2s2 2p6 3s2 ऐसे चलता ना अपना। ये इलेक्ट्रॉनिक का उसके बाद 4 रहा तो ये समझ में आ रहा है क्या आपको? ये सब पूरा टेबल समझ में आ रहा है क्या? यस सर। और एक बार पढ़ना है इसको। यहाँ पे आप हाउ बोलते रहे होंगे ऑनलाइन में, कहा नहीं बोलते बोलते, लेकिन और एक बार पढ़ना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है समझने। एक बार समझ में आया तो आप कौन सा भी निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है कैसे? यस पी डी तुम्हारी केमिस्ट्री है, आपका सबका केमिस्ट्री है कि कोई कंप्यूटर की भी है इसमें? केमिस्ट्री है सर। हुआ ना केमिस्ट्री में? थोड़ा बहुत तो हुआ होगा ना फिजिकल केमिस्ट्री। तो सही है। So this is the situation. So this is the Pauli exclusion principle and its importance. Have you got? Yes sir. We shall stop that today. If you want to ask any question, please आपको पूछना है तो पूछिए, 5 मिनट बाकी। कुछ पूछना चाहते हैं? नो सर। बनाया कि पहले से बताओ और एक बार। एटम में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन सेम क्वांटम स्टेट के नहीं रहते। क्वांटम स्टेट बोले तो कौन? N L L ML और MS ऐसा कि नहीं इलेक्ट्रॉन के साथ ये चारों रहते कि नहीं? अपन पढ़ के आए कि नहीं? 7 रहते टोटल, लेकिन ये चारों मिला के कम से कम क्वांटम स्टेट बनती। पढ़े कि नहीं अपन ने? ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अज़्यूमिटल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर, टोटल 7 पढ़े। 7 में से ये 4 तो भी रहना है, चारों मिलाए तो उसकी क्या बनती? क्वांटम स्टेट बनती, उसकी हालत बनती, उसका एड्रेस बनता। ये एड्रेस रहा तो 2 सेम एड्रेस के नहीं रह सकते। बोलने का मतलब आम अल्फाज में अगर बोले तो 2 सेम एड्रेस के 2 सेम क्वांटम स्टेट के इलेक्ट्रॉन और एटम में नहीं रहते। अगर वो रह जाए तो क्या हो जाएगा? वो H4